Why study history? This year in class 6, you will read history. It is part of a bigger group of subjects known as social science. Social science helps us understand the working of our social world. It tells us about geography, the way the economic works, and the manner in which social and political life is organized. Most part of social science, other than history, tell you about the world in the present. History will help you understand how this present evolved. It will tell you about the past of the present. इस साल छठी क्लास में छठी कक्षा में तुम इतिहास पढ़ो। कुछ और विषयों के साथ इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है। भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में और सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में। इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान के अन्य विषय प्रायः आज की दुनिया के बारे में ही बताते हैं। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। When you live in a society, we become used to the world around us. We begin to take that world for granted. We forget that life was not always the way we see it. Can you, for instance, imagine a life without fire? Can you think of what it is to live in a society where the cultivation of crops was unknown, or what it was to live at a time when roads and railways did not exist and yet people traveled long distances? History can take us into these pasts. आज हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। उदाहरण के लिए, क्या आप ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहां आग न हो? कैसा रहा होगा एक ऐसी दुनिया में रहना जहां खेती बाड़ी का आविष्कार न हुआ हो? या उस जमाने में जिंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं तो कर लेते थे लेकिन न सड़कें थीं न रेलगाड़ियां। इतिहास हमें उन अतीतों की ओर ले जा सकता है। हिस्ट्री इन द सेंस इज एन एडवेंचर. It is a journey across time and space. It transports us into another world, another age, in which people live differently. Their economy and society, their beliefs and faiths, their clothes and food, their settlements and buildings, their arts and crafts. Everything was different. History can open doors into such worlds. इस रूप में इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें समय और संसार के आर पार ले जाती है। यह ले जाती है हमें एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरे युग में, जब लोगों का जीवन अलग था। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज, उनकी मान्यताएं और विश्वास, उनके भोजन और कपड़े, उनके घर और बस्तियां, उनकी कला और शिल्प, सब कुछ भिन्न था। इतिहास ऐसी दुनिया के झरोखे खोल सकता है। You may shrink
your soldiers and say, why should we bother about past that are no longer with us, past that have gone by? But history is not just about the past, it is about the present. The society we live in has been fashioned by those who came before us. The joys and sorrows of their daily lives, their attempts to grapple with the problems of their time, their discoveries and invention slowly transformed human societies. These changes were often so gradual, so seemingly small that their impact was not noticed by people at that time. Only later, when we return to the past, when we study history, can we begin to see how these changes happened, and we can observe their long term effect. By reading history, we can understand how the modern world has emerged over long centuries of development. लेकिन तुम अपने कंधे झटक कर कह सकते हो, हम ऐसी बीती बातों को लेकर क्यों परेशान हो जो अब नहीं है। ऐसे अतीत जो गुजर चुके हैं उनके बारे में हम क्यों सोचें, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है, यह आज के बारे में भी है। आज हम जिस दुनिया में हैं उसे बनाया है हमसे पहले आए लोगों ने। उनके जीवन के सुख दुख, अपने युग की समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें और आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में तो मानव समाज बदला। प्रायः ये बदलाव इतने धीमे और मामूली होते थे कि उस युग के लोगों को इसका पता भी नहीं चलता था। बाद में जब हम अतीत पर नजर डालते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें अंदाजा लगता है कि ये बदलाव कैसे आए। तभी हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। The book that you will study this year, you will take you back to our ancient pasts. Over the next 2 years, you will continue your journey through the history of subsequent period. इस साल आप जो पुस्तक पढ़ेंगे वह हमें सबसे प्राचीन अतीतों की ओर ले जाएगी। अगले 2 वर्षों में आपकी यह यात्रा बाद के कालखंडों से गुजरेगी। इस किताब में आप सिर्फ राजाओं, रानियों, उनकी विजयों और नीतियों के बारे में ही नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे शिकारियों और कृषकों के बारे में, शिल्पकारों और व्यापारियों के बारे में। तुम जान पाओगे आगे के बारे में, आगे के बारे में, लोहे के आविष्कार के बारे में, गेहूं और धान की खेती कैसे होने लगी, गांव और शहर कब कैसे बने, तीर्थयात्रियों और संतों, इमारतों तथा चित्रों, धर्मों और विश्वासों के बारे में भी आप पढ़ोगे। आप पाओगे कि इतिहास सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं है, इतिहास सामान्य स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के विषय में नहीं है, बल्कि वह समाज में हो रही हर चीज के बारे में है। In this book, you will read not just about the kings and queens who lived in ancient India and about their conquest and policies. You will learn about hunters and peasants, craft people and traders. You will see how fire came to be used and iron tools were discovered, how wheat and rice began to be cultivated, and villages and towns developed. You will read about pilgrims and saints,
buildings and paintings, religions and beliefs. You will find about the history is not only about great men, it is also about the lives and activities of ordinary women, men, and children. History is not only about political events, it is about everything that happens in society. The book will also help you understand how historians come to know about the past, somewhat like detectives. Historians follow clues and trace left by people who lived in the past, everything that survives from earlier times. Stone tools, traces of plants, bones, written materials and pictures, ornaments and implements, inscriptions and coins, building and sculptures, pots and pans can tell us something about the past. Historians and archaeologists study these sources and try and understand them. In this book, you will see many of these sources and find out how historians study these. इस किताब में आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि इतिहासकारों को अतीत के बारे में कैसे पता चलता है। कुछ कुछ जासूसों की तरह इतिहासकार पुराने जमाने में रहने वालों द्वारा छोड़े गए सुरागों और चिन्हों का अध्ययन करते हैं। अतीत का हर अवशेष, पत्थर के औजार, पौधों के अवशेष, हड्डियां, लिखित सामग्री और चित्र, आभूषण और उपकरण, अभिलेख और सिक्के, इमारतें और मूर्तियां, बर्तन हमें पुराने जमाने के बारे में बता सकता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इन स्रोतों का अध्ययन कर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इस किताब में ऐसे कई स्रोत दिखाए जाएंगे और साथ साथ आप यह भी पता कर पाओगे कि इतिहासकार इनका इवोल्यूशन या मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं या करते हैं। बट स्टडिंग हिस्ट्री कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड मोर देन द पास्ट. It enables us to develop important skills and qualities when we try and enter another world. We have to learn how to do this, to understand people whose lives were different. As we do this, we open up our minds and break out of our small present day worlds. We begin to see how other peoples may think and act. This can become a learning experience that enriches us in many different ways. लेकिन इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते। इतिहास हमें कुछ योग्यताएं और कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। अतीत की दुनिया में समाने के लिए, एक ऐसी दुनिया के लोगों को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। जब हम यह करते हैं कि हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है और वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। यह एक शुरुआत होती है दूसरे लोगों के क्रियाकलाप, एक्टिविटी और उनकी थिंकिंग यानी सोचने के तरीकों को समझने की। हमारे लिए यह एक अशिक्षाप्रद और संवर्धक अनुभव हो सकता है। इसलिए अपने कंधे झटकने के पहले तुम स्वयं से एक सवाल पूछो, क्या मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह समझना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है? मैं जिस दुनिया में हूँ, क्या उसे मैं जानना चाहता हूँ? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें जरूरत होगी यह जानने की कि हमारा समाज कैसे विकसित हुआ, कैसे हमारे अतीतों ने हमारे वर्तमान को रूप प्रदान किया। So before you send your soldiers, ask yourself one question: do I want to know who I am? Do I want to understand how this society works? Do I want to understand the world in which I live? If you do, then you will need to know how our societies have evolved and how our past have shaped the present. So, dear student, we shall continue next part, chapter number 1. Thanks for watching. Thank you.